Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So, in today's class, we will be going to discuss some of the important questions in our polity section. So, without any further ado, let's start today's section. The very first question is regarding the primary objective of democracy or not direct democracy. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप पढ़ लीजिए टू मैक्सिमाइज इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड राइट्स देखते हैं टू इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हाँ सही है टू कंसंट्रेट पावर इन द हैंड्स ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिट्स तो ये तो बिल्कुल गलत है देखिए टू इन्वॉल्व सिटीजन्स डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग थ्रू पॉपुलर वोट्स तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी द नेक्स्ट क्वेश्चन if the court violates the principles of natural justice under article 21, then it is the most suitable writs under article 32 to be granted by the superior courts. It is not available against legislative bodies and private individuals. So ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज़. अगर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के ऊपर नहीं है तो ये नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल से नहीं है तो को वारंटो तो हो सकता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स में, ठीक है. हेबस कॉपस भी हो सकता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स में. बट ये क्या बोल रहा है, इफ़ द कोर्ट वॉलेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देन इट इज़ द मोस्ट सुटेबल रेट टू बी ग्रांटेड बाय द सुपीरियर कोर्ट्स. मतलब दोनों कोर्ट हैं, अगर दोनों ही कोर्ट हैं तो इसमें बस सर्चोरी हो सकता है. अंडरस्टूड. एंड सर्चोरी प्रोवाइड्स नॉन एक्टिविटी वेयर एज मैंडामेस सिग्निफाइज एक्टिविटी. इसका मतलब क्या भाई, इफ़ अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इफ़ अ पर्टिकुलर बॉडी इज नॉट डूइंग इट्स टास्क then the courts can give this mandamus writ to force the government employee or government organization to do a particular task, so it signifies activity. And certiorari is curative in nature. The court has overlapped its jurisdiction while deciding on a case. The litigant will approach the Supreme Court. Dear Supreme Court, the court is going out from its jurisdiction. So then the superior court will give the decree or the writ of certiorari to inhibit the activity of the lower courts. So it signifies non-activity. Quo warranto, person holding a office, public office, उस पर होता है. और habeas corpus to have the body. If someone is getting abducted, then a different person can approach the courts and ask फॉर द रेट ऑफ हेबस कॉर्पस. तो पुलिस उसको जो भी एबडक्टेड पर्सन है उसको पेश करेगी, अब चाहे वो जहाँ पाताल से लाए या कहीं से भी लाए. अंडरस्टूड. सो अवर आंसर इज सर्चोरी एंड दिस रीड्स आर टेकन फ्रॉम द यूके. प्रियम्बल was enacted by the Constituent Assembly after the rest of the Constitution was already enacted. So याद कर लीजिए, the preamble inserted in the Constitution at end was to ensure that it was in conformity with the Constitution as adopted by the Constituent Assembly. तो यही इसका रीज़न था ताकि वो लास्ट में enact किया गया. Preamble has been amended only once, 42nd Amendment Act of 1976. 3 words S square I. Socialist secular integrity term has been included in our Constitution. And in particular the preamble. Which of the following, अच्छा एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ. The term federal hasn't been written anywhere in the constitution, but federal provision is the part of basic structure doctrine. तो ये याद रखना. Which of the following statements is correct about the appointment of judges in high courts? तो देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है, तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मैं आपको बता रखा है कि मैं अपने कुछ साथ में नोट्स वोट्स नहीं रखता हूँ. Ad hoc judges during the lack of quorum can be appointed by the President of India. ठीक है चलो. Retired judges can be appointed temporarily by the President of India. तो ये मुझे अच्छे से पता है कि CJI on prior assent of President will appoint the retired judges. Additional judges can be appointed by the President of India. Additional judges ये भी मुझे लग रहा है CJI करता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. Acting judges can be appointed by the Chief Justice of India. Acting judges तो प्रेसिडेंट करता है.
एडहॉक जजेस ड्यूरिंग द लैक ऑफ कोरम कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यही मुझे सही लग रहा है, पर आप एक बार देख लेना ये क्वेश्चन, थोड़े ट्रिकी होते हैं यार ये वाले क्वेश्चन ना। एडहॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस मुझे अच्छे से पता है, सीजीआई करता है। एडिशनल जजेस, अच्छा एक्टिंग जजेस प्रेसिडेंट करता है, ये भी मुझे अच्छे से पता है। तो ये एडिशनल अगर प्रीलिम में होता तो इन दोनों में मैं अकड़ बकड़ बम्बे वो खेल के आ जाता। Consider the following statements with reference to the Article 16 of Indian Constitution. It prohibits discrimination both by state and private individuals. So there are some fundamental rights which can be acted against both the state as well as private individuals. कौन कौन सी है? 15, 16 नहीं है, 17, 18 नहीं है, 19, 20 नहीं है, 21, 22 नहीं है, 23 and 24. There are some rights that are exclusively given for the citizens and not to foreigners. वो कौन सी है? 15, 16, 19, 29, 30 and 18 clause 2. पार्लियामेंट कैन नॉट प्रेस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन। अरे भाई पार्लियामेंट ही तो करता है, अंडर 16 क्लॉज 3 आई थिंक। द कोर्ट कैन नॉट इशू द मैंडेमस टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन। द कोर्ट कैन नॉट इशू द मैंडेमस, यस, क्यों? क्योंकि इसको देनी पड़ेगी लेजिस्लेटिव बॉडी को, और लेजिस्लेटिव बॉडी को आप मैंडेमस नहीं दे सकते। तो आंसर इज ओनली 2. इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, टर्म गैरी मेंटरिंग। अच्छा, गैरी मेंटरिंग बहुत न्यूज़ में था, क्यों था? क्योंकि JNK में डिलिमिटेशन हो रही थी और तब ये नाम रखा था, लग रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ डूइंग गैरी मेंटरिंग। तो ये कुछ डिलिमिटेशन से इसका रिलेशन है, तो देख लीजिए, ये देख लो, मैनिपुलेटिंग डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज टू गेन द अनफेयर पॉलिटिकल एडवांटेज, तो इसी को डिलिमिटेशन बोलते हैं। सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस, प्रैक्टिस ऑफ अलाइंस वोट, लीगल एंड एथिकल प्रैक्टिस टू मेंटेन द इंटीग्रिटी, नहीं, मैनिपुलेटिंग डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज टू गेन एन अनफेयर पॉलिटिकल एडवांटेज। ये देख लीजिए, ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट, नहीं भाई 24 ही स्टेट्स में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, तो ये लिखा तो हुआ है पर हमारे में 24 में ही है। सो 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ मैनी ऑफ द अबव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कब आई थी भाई? 97 में। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनके ऊपर तो कानून ला सकता है हमारा कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट, बट जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसके ऊपर नहीं ला सकता हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट में, लिस्ट 2। बट जो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इसके ऊपर यस द सेंटर हैज़ अ जुरिडिक्शन, क्योंकि ये कॉन्करेंट में आती है शायद से। तो 97th अमेंडमेंट में आया था, तो इसमें हमारे इंक्लूड हुए थे DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स में, तो 19 में हुआ था, और DPSP भी कोई थी मुझे याद नहीं है। तो यही है आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आई थिंक नहीं है। 5th शेड्यूल में भी क्यों होगी भाई? 5th शेड्यूल डील्स विद द शेड्यूल कास्ट स्टेट्स, जो कि 10 स्टेट्स हैं, तो ओनली 2। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट। The Constitution declares Delhi as the seat of the Supreme Court. Yes. The Constitution authorizes the President of India to appoint any other place. No. CGI को with prior President assent. The provision of declaration of any other place as the seat of the Supreme Court is the only optional and not compulsory. No court can give any direction either to the President or to the Chief Justice of India to appoint any other place as a seat of. ये भी सही है बिल्कुल। तो वो आंसर इज, हमको नॉट ही तो पूछा था, तो बी है हमारा आंसर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, which of the following statement below is not correct regarding the procedure for the amendment of the Constitution? A private member can propose an amendment bill to the Constitution. The introduction of a constitutional amendment bill does not require prior President permission. The constitutional amendment bill can be discussed in a joint sitting. नहीं भाई, in the money bills and the constitutional amendment bills there is no provision of joint sitting. The President must give assent to the constitutional amendment bill passed by the parliament. आई थिंक ये 42nd में आया था, एक बार देख लेना, बट मुझे लग रहा है 42nd में ही आया था। सो ऑर्डिनरीली द प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू गिव बैक द बिल टू द हाउसेज फॉर द रिकन्सिडरेशन, और इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। सो आई थिंक 42nd अमेंडमेंट में ये सस्पेंसिव वीटो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के प्रोविजन से हटा दी थी। सो इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैज़ बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज विद द स्पेशल मेजॉरिटी, then it has been taken to president and president has to sign it. Understood? So यही थे आज के क्वेश्चन। होप सो आपके नॉलेज में थोड़ी वृद्धि हुई होगी।
आपके प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।